آج کی میری یہ ویڈیو کوٹ ڈی جی کے قلعے کے بارے میں ہے۔ خاصی پرانی یہ میری پروڈکشن ہے اور اس میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ کس طرح یہ قلعہ جو ہے میر سہراب خان نے 1797 میں تعمیر کرایا اور یہ بر صغیر میں تعمیر ہونے والا سب سے آخری قلعہ تھا۔ اس کے بعد پھر کوئی اور قلعہ تعمیر نہیں ہوا۔ تو آئیے دیکھیے۔ انسان کیا ہے؟ تضادات کا مجموعہ۔ انسان کا سب سے بڑا دوست انسان ہے اور انسان کا سب سے بڑا دشمن بھی خود انسان ہی ہے۔ انسان سے انسان کی جنگ عرصے سے جاری ہے۔ انسان جنگ کرتا ہے اور امن کا خواہش مند ہے۔ وہ اپنی زندگی کا تحفظ بھی چاہتا ہے۔ قلعے اسی آرزو کی ایک علامت ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہتھیار موجود نہیں تھے۔ اس وقت انسان کے تحفظ کے لیے مٹی اور پتھر کی دیواریں بہت کافی تھیں۔ پھر نت نئے ہتھیار وجود میں آئے اور دیواریں پھیلتی اور بلند ہوتی چلی گئیں۔ گولے اور بارود کی ایجاد نے قلعوں میں شگاف ڈالنا شروع کر دیے، لیکن اب بھی انسان قلعہ بند ہو کر جنگوں کو طول دے سکتا رہا۔ 20ویں صدی آتے آتے قلعے محض شان و شوکت کی نمائش بن کر رہ گئے۔ وادی مہران میں پتھر ہر عہد کی کہانی سناتے نظر آتے ہیں۔ قومی شاہراہ فاصلوں کو سمیٹ کر تاریخ سے قریب تر کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں تو ایک وسیع و عریض عمارت دور ہی سے جھانکنے لگتی ہے۔ یہ کوٹ ڈی جی کا قلعہ ہے۔ یہ سابق ریاست خیرپور کے قصبے کوٹ ڈی جی میں واقع ہے۔ اس کا فاصلہ کراچی سے شمال کی سمت 450 کلومیٹر ہے۔ یہ خیرپور شہر سے جنوب کی سمت تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے۔ کوٹ ڈی جی کا یہ قلعہ جنوبی ایشیا میں تعمیر کیا جانے والا سب سے آخری قلعہ ہے۔ اس کے عین سامنے سڑک کی دوسری سمت جنوبی ایشیا کے قدیم ترین قلعے کے کھنڈرات بھی موجود ہیں۔ یہ قدیم تہذیب کوٹ ڈی جی کے آثار ہیں جو ہمارے ملک کی سرزمین سے برآمد ہونے والے قدیم ترین آثار قدیمہ میں سے ایک ہیں۔ یہ موہنجو دڑو، ہڑپا اور آمری جیسے قدیم آثار سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ کوٹ ڈی جی کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ یہ وادی سندھ کی تہذیبوں کا منبع تھی۔ یہ تاریخ کا کیسا دلچسپ اتفاق ہے کہ اس نے قدیم و جدید دونوں قلعوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ کوٹ ڈی جی کا یہ جدید قلعہ ایک بلند پہاڑی پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ زمین کی سطح سے 70 فٹ بلند ہے۔ قلعے کی تعمیر میں پہاڑی کی اونچائی اور اس کے پیچ و خم کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ کہیں یہ دیواریں آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کہیں زمین کی سطح کے برابر۔ قلعے کوٹ ڈی جی تک پہنچتے پہنچتے وقت نے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ سندھ ابھی انگریزوں کی نگاہوں سے بہت دور تھا۔ یہ 1784 ہے۔ سندھ میں کلہوڑا خاندان کی حکومت کے خاتمے کے بعد تالپور حکمرانوں کا دور شروع ہوا۔ سندھ 3 تالپور سرداروں میں تقسیم ہو گیا۔ میر فتح علی خان کی حکومت کا صدر مقام حیدرآباد تھا۔ میر ٹھارہ خان کی تحویل میں میر پور خاص اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ آیا اور میر سہراب خان نے خیرپور کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ خیرپور اس زمانے میں اپنے والی کے نام پر سہراب خان پور کہلاتا تھا۔ میر سہراب خان نے برسر اقتدار آنے کے بعد
अपनी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अजीम शान क़लआ तामीर करने का फैसला किया। मीर सोहराब खान के ज़माने में रियासत जोधपुर और जैसलमेर की सरहदें रियासत खैरपुर से मिलती थीं। उन इलाकों में कहर की वजह से हजारों बाशिंदे नक़ल मकानी करके खैरपुर आ गए। कहते हैं कि उन अफराद को रोजगार फराहम करने के गरज से मीर सोहराब खान ने किले की तामीर का फैसला किया था। हर मजदूर को उजरत के तौर पर रोजाना 7 सेर ज्वार दी जाती थी। मीर सोहराब खान ने किले की तामीर अपने वजीर तामीरात मोहम्मद सालेह ज़हरी बलोच के सुपुर्द की थी। किला 1797 में तामीर हुआ और इसका नाम किला अहमदाबाद रखा गया। किले की तामीर के बाद हरदल अजीज हुक्मरान मीर सोहराब खान ने लोगों की मईशत की तरफ तवज्जो दी। उस जमाने में इस इलाके में पानी गौहर नायाब था। यहाँ के अक्सर बाशिंदे किसान थे, इसीलिए मीर सोहराब खान ने एक नहर तामीर कराई। ये नहर मीरवाह के नाम से मशहूर हुई और इलाके की जमीन सरसब्ज़ व शादाब खेतों में तब्दील हो गई। ये नहर आज भी मौजूद है। मीर सोहराब खान ने एक तवील अरसे हुकूमत की। उनकी दूरअंदेशी के सबब सल्तनत को वुसअत मिली और उनकी हुकूमत शुमाल में कश्मीर, मशरक़ में जैसलमेर और मगरब में गंदावा तक फैल गई। किले कोट-डी-जी तारीख को मीर सोहराब खान का बख्शा हुआ एक खूबसूरत नक्श है। इसका मजमूई रकबा तकरीबन 5.37 एकड़ यानी 2,33,964 मुरब्बा फुट है। किले की तामीर में मकामी पहाड़ियों का सख्त पत्थर और भट्टे की पकी हुई ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। ये ईंटें 9 से 10 इंच लंबी, 6 से 7 इंच चौड़ी और सिर्फ 1 इंच मोटी हैं। इन्हें एक दूसरे पर इस तरह रखा गया है कि न सिर्फ दीवारें मजबूत रहें बल्कि दीदर से भी मालूम हों। किले में दाखिले से पहले एक मोड़ है। ऐसे कई और मोड़ किले के अंदर भी मौजूद हैं। इन्हें तकनीकी इस्तिलाह में फॉल्स कर्व कहा जाता है। अगर रास्ता सीधा हो तो उस पर पूरी कुव्वत से हमला किया जा सकता है, लेकिन मोड़ की सूरत में दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते हमले का जोर टूट जाता है। ये किले का मरकजी दरवाजा है। इसकी लंबाई 16 फुट और चौड़ाई 10 फुट है। आम लोगों की आमद-ओ-रफ्त के लिए इसी दरवाजे में एक दरवाजा भी निकाला गया है। ये दरवाजा सागवान की लकड़ी का है। इसमें 7.5 इंच लंबी लोहे की कुल 234 मेखें बाहर की सिमत निकली हुई हैं ताकि हाथियों से हमले की सूरत में ये मौसर दिफाई रुकावट साबित हो। सदर दरवाजे के अंदर एक वसी सहन है। दाएं सिमत ये कुआं है जो किले में पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसका कुतुर 13 फुट 9 इंच और गहराई 45 फुट के करीब है। ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ा जा सकता है। सीढ़ियों की तादाद 39 है। दूसरा रास्ता मुसत्ते ढलवान है जो 18.5 फुट चौड़ी है। ये रास्ता हाथियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किले की तामीर में हर मरहले पर दिफाई जरूरियात का ख्याल रखा गया है। मरकजी दरवाजे के फौरन बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है। दूसरे दरवाजे तक भी रास्ता सीधा नहीं बल्कि इसे भी एक मोड़ की शक्ल दी गई है। दूसरा दरवाजा निस्बतन छोटा है। इसकी ऊंचाई 13 फुट है। इसमें मेखों की तादाद 208 है।
तीसरे दरवाजे के दरमियान भी हमले का जोर तोड़ने के लिए मोड़ मौजूद है। दूसरे दरवाजे के बाद दालान की छत मखरूती शक्ल की है और ईंटों को एक दूसरे में पेवस्त करके ये शक्ल दी गई है। कली में कई भूल भुलैयां भी मौजूद हैं। तीसरे और आखिरी दरवाजे की दाईं सिमत तोप के गोले रखने की जगह थी। कुछ अरसे तक वो गोले यहाँ मौजूद थे, अब उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। कली में कुल 43 दमदमे हैं। ये थोड़े थोड़े फासले पर हैं। इनकी तामीर से न सिर्फ दीवार की यकसानियत खत्म हो गई है, बल्कि कले के वक़ार में इजाफा भी हुआ है। दमदमे बड़े भी हैं और छोटे भी। बड़े दमदमों में बड़ी तोपें रखी जाती थी और छोटे दमदमों में राइफल बरदार फौजी बैठते थे। तमाम दमदमे निस्फ दायरे में दीवार से बाहर की जानिब निकले हुए हैं। एक दमदमा चौकोर है और एक मुकम्मल शक्ल का भी। दमदमों और दीवारों में बारिश के पानी की निकासी का एहतमाम भी मौजूद है। तीसरे दरवाजे के बाएं सिमत ये 6 सीढ़ियां नीचे की सिमत जा रही हैं। इनका सिलसिला ऐसे दरवाजे पर खत्म होता है जिसकी चुनाई कर दी गई है। ये दरवाजा कले की दूसरी सिमत होता है, जहां न कोई सीढ़ी है और न ही उतरने के लिए कोई जगह। शायद ये दरवाजे कले की तामीर के वक्त तामीराती सामान बाहर से अंदर लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और कले की तामीर मुकम्मल होने के बाद इनकी चुनाई कर दी गई। ये कले के कमजोर हिस्से हैं। अगर दुश्मन इस जगह से हमलावर हो तो वो इब्तिदाई 2 दरवाजों से गुजरे बगैर बराह रास्त कले के तीसरे और आखिरी दरवाजे तक पहुंच सकता है। कले की दीवार के साथ इस किस्म के चंद और दरवाजे भी नजर आते हैं। तीसरा दरवाजा दोनों दरवाजों से मुख्तलिफ है। इसका ऊपरी हिस्सा मेहराबी है और इसके किनारे छत्तेदार। इसमें भी आईने की निकली हुई हैं, जिनकी तादाद 177 है। तीसरे दरवाजे को अबूर करके ही कले को फतह किया जा सकता था। ये बुर्ज कले के फातह के लिए अपना दामन वाह किए हुए है। कले पर हुक्मरान शख्स का परचम यहाँ लहराया जाता था। इसीलिए इस बुर्ज को फतह ठुल या फतह मीनारा कहा जाता है। कितने ही बहादुर यहाँ परचम लहराने की आरज़ू रखते होंगे। तीसरे दरवाजे से हम कले के आखिरी हिस्से में दाखिल होते हैं। यहाँ शाही खानदान का रिहायशी हिस्सा, फौजी बैरकें, तालाब, असलहा खाना और बारादरी वगैरह मौजूद हैं। यहाँ रात बहुत गहरी होती होगी। ये 27 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा एक कमरा है जिसकी छत आज मौजूद नहीं है। ये दरअसल बत्ती गोदाम है। कले में रोशनी के लिए तमाम अशिया यहाँ ज़ख़ीरा की जाती थी। सामने की दीवार में चराग रखने के लिए 108 ताकदान बने हुए हैं। अहाते में दोनों जानिब फौजी बैठे हैं। ये कमरे हवादार हैं। हवा की आमद रफ्त के लिए 5.5 फुट ऊंचे और 2.5 फुट चौड़े ताकचे बने हुए हैं। अंदरूनी हिस्से में गारे से असरकारी की गई है ताकि ये कमरे गर्मियों में ठंडे रहें। कभी यहाँ शबदार आराम के मत वाले शाहों को अपनी नींद का अतिया देते होंगे। सामने के हिस्से में एक असलहा खाना है जिसकी लंबाई 27 फुट और चौड़ाई 16 फुट है। कुछ मुद्दत पहले यहाँ तोप और गोले रखे हुए थे। कला अपने असलहा के नादिर ज़ख़ीरे के लिए खासी शोहरत रखता था। उसमें 3 तोपें खास तौर से मशहूर थीं।
उनमें से एक तोप का नाम बरियम तोप था, जो पुर्तगाली रोड़ी के करीब दरियाए सिंध के किनारे छोड़ गए थे। इस तोप को मीर सुराब खां 2 हाथियों की मदद से घसीटकर इस किले में लाए थे। दूसरी 2 तोपों के नाम सफन सफा और मुल्क मैदान थे। यहाँ कई तोपें और भी थीं। अब उनमें से चंद तोपों को खैरपुर शहर में आम नुमाइश के लिए रख दिया गया है। इनमें मरीन नामी एक तोप भी मौजूद है। ये ऊंचा मीनार इस किले का सबसे बुलंद हिस्सा है। इसे सफन सफा ठुल या सफन सफा मीनार कहते हैं। इस मीनार को ये नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ से पूरा किला साफ नजर आता है। इस मीनार के नीचे एक तालाब है। ये तालाब 41 फुट लंबा, 27 फुट चौड़ा और 11.5 फुट गहरा है। मुंडे की ऊंचाई 3.25 फुट है। तालाब के वसत में मुरब्बा शक्ल के 10 फुट ऊंचे सुतून भी मौजूद हैं। ये सुतून तालाब की छत को सहारा देने के लिए बनाए गए थे, ताकि पानी धूप की तमाज़त से गर्म ना हो। ये तालाब हर वक्त पानी से भरा रहता था। किले के इब्तिदाई हिस्से में मौजूद कुएं से खच्चरों के जरिए यहाँ पानी लाकर ज़ख़ीरा किया जाता था और फिर माशी यहाँ रिहाइश पजीर अफराद को पहुँचाते थे। यहाँ एक तारीख़ी कैदखाना भी था, जिसकी लंबाई 138 फुट और चौड़ाई 9 फुट थी। एक सुरंगनुमा रास्ता इस कैदखाने तक जाता था। कैदियों को खुराक पहुंचाने के लिए छत पर एक सुराख किया गया था। ये इस इलाके में अपने दौर का सबसे सख्त जेल खाना था, जहाँ इर्द गिर्द की रियासतों के खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। इसी सख्ती के बायस सिंधी जबान में एक मुहावरा राइज हो गया था, जिसका मफहूम है कोर्ट डीजी से वापसी नामुमकिन है। किले में शाहाने वक्त की रिहाइश गाहें भी थीं, लेकिन अब उनका रंग रूप उजड़ चुका है। हिस्से में एक बारादरी या शहनशीनी है। बारादरी की छत जदीद वज़ा की है। इसकी साख से पता चलता है कि ये इजाफा बाद में किया गया। छत खासी गिर चुकी है, जिससे लोहे के तार झांकते हुए नजर आते हैं। इस बारादरी की तर्ज तामीर किले के दूसरे हिस्सों से मुनफरिद है। इसकी लंबाई 16 फुट, चौड़ाई 10.5 फुट और ऊंचाई 8.5 फुट है। इसके लिए 3 फुट ऊंचा चबूतरा तामीर किया गया है। बारादरी पत्थर के 10 खूबसूरत सुतूनों पर कायम है। इन सुतूनों को मेहराबदार दरवाजों की शक्ल दी गई है। इन पर इंतहाई दिलजेब बेलबूटे बने हुए हैं। अंदरूनी हिस्से में कमल के फूल नुमायां हैं, जो लाहौर के शाही किले के मुगल तर्ज तामीर से मुशाबह हैं। कभी यहाँ खुशजमाल और खुशलिबास अपनी खुशबू बखेरते होंगे। किले कोटडीजी या किला अहमदाबाद एक मिसाली किला है। इसका शुमार दुनिया के तंग तरीन किलों में किया जाता है। कहीं भी इसकी चौड़ाई 100 फुट से ज्यादा नहीं, इसलिए दुश्मन की तोप से निकले हुए गोलों का किले के अंदर पहुंचना मुश्किल है। इसके अलावा अपने वसी रकबे की वजह से हमलावर खुद को मुहाफिजों की नजरों से महफूज नहीं रख सकता था। तारीख में इस किले को फतह करने का कोई वाकया नहीं मिलता। मजबूती और खूबसूरती की बिना पर ये शायरों की मदह का मौजू भी बना। अहमदाबाद किला बर संगस्त
دیدار دشمنا دل تنگ است. آج کے عہد کو انسانی ترقی کی معراج کہا جاتا ہے، لیکن آج انسان کی زندگی انتہائی بے قیمت ہے. ایک زمانہ تھا جب قلعے کی دیواریں انسان کی پہنچ سے بہت دور تھیں. اب اسلحہ کے ڈھیر انسانی تحفظ سے بہت بلند ہو گئے ہیں. یہ قلعے انسان کی اس عظمت رفتہ کی نشانیاں ہیں کہ اب انسان گھٹ گئے ہیں اور سائے بڑھتے رہے ہیں.